فضائی آلودگی نے شہر کی جان نہ چھوڑی۔ لاہور کا فضائی آلودگی کے اعتبار سے تیسرا نمبر برقرار ہے۔ شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 181 ریکارڈ کی گئی۔ ڈی ایچ اے فیز 8 میں آلودگی کی شرح 221، یو ایس کونسلٹ 196 ریکارڈ کی گئی ہے۔ ماہرین موسمیات نے شہر میں بارش کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا۔ فضائی آلودگی کے سائے لاہور پر برقرار ہیں۔ شہر میں AQI کی مجموعی شرح 181 ریکارڈ کی گئی۔ لاہور کا فضائی آلودگی کے اعتبار سے تیسرا نمبر ہے۔ DHA فیز 8 میں آلودگی کی شرح 221، یو ایس کونسلیٹ 196 ریکارڈ کی گئی۔ کری 10 میں 183، فدا حسین روڈ انٹرچینج میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 178 ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین موسمیات نے شہر میں بارش کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا۔ پھل اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ گراں فروشی کا سلسلہ جاری ہے۔ عوام کی قوت خرید جواب دے گئی۔ آلو، پیاز، ٹماٹر، ادرک اور لہسن کی منمانے دام و فروخت۔ سیب، کیلا، انگور، موسمی، امرود بھی مہنگے ہو گئے۔ سبزیوں کی اوپن مارکیٹ میں زائد نرخوں پر فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ آلو درجہ اول 130 کے بجائے 160، پیاز درجہ اول 140 کے بجائے 180، ٹماٹر 180 کے بجائے 240 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ ادھر ادرک 450 کے بجائے 550، لہسن 490 کے بجائے 580، مٹر 180 کے بجائے 200 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ ادھر پھل بھی مہنگے داموں بیچے جا رہے ہیں۔ کیلا درجہ اول 130 کے بجائے 160 روپے درجن، سیب 250 کے بجائے 300 روپے کلو، موسمی 125 کے بجائے 200، امرود 80 کے بجائے 250 روپے کلو فروخت کیے جا رہے ہیں۔ انگور 305 کے بجائے 340، آڑو 290 کے بجائے 350، پپیتا 220 کے بجائے 300 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ شہریوں نے پرائس کنٹرول کمیٹیوں سے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ ماڈل ٹاؤن ایس بلاک نظروں سے اوجھل ہونے کے باعث بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ ٹوٹی گلیاں، سیوریج مسائل، صاف پانی کی قلت نے مکینوں کی زندگی اجیرن بنا ڈالی ہے۔ تباہل گلیوں کے باعث علاقہ مکینوں کی آمدورفت متاثر۔ نلکوں میں سیوریج ملا پانی آنے سے صاف پانی کا حصول بھی مشکل ہو گیا ہے۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر بنیادی سہولیات کے فراہمی کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ مزید احوال جانیں گے رومیل الیاس سے۔ جی رومیل، بتائیے گا۔ اس بلاک میں اس وقت میں موجود ہوں، جہاں کے مکینوں کو انتظامی عدم توجہ کے باعث بنیادی سہولیات کے عدم فراہمی کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ تباہ حال گلیاں، صاف پانی کی قلت اور جو دیگر بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، اس نے علاقہ مکینوں کا جینا محال کر رکھا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت کچھ علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کب سے ان کو ان مسائل کا سامنا ہے اور اس پر یہ کیا کہیں گے۔ بتائیں جی، کب سے یہ بنیادی سہولیات فراہم نہیں ہیں آپ کو؟ گلیوں کا برا حال ہے، سیوریج مسائل ہیں، کچھ شکایات کی ہیں آپ نے انتظامی اداروں سے، منتخب سیاسی نمائندوں سے؟ دیکھیں جی، اس چیز کو ایسکیلیٹ تو ہم نے کیا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو پورے پاکستان میں ایک المیہ سب کے لیے برابر ہے، لیکن خیر جب ہم یہاں پہ رہتے ہیں، بڑے عرصے سے یہاں پہ ہم مکین ہیں، لیکن ہم نے اپلیکیشنز بھی دیے ہیں۔ یہاں پہ جو سیوریج کے ایشو ہیں یا جو روڈ کے مسائل ہیں یا جو لوگوں کا گزرنا ہے، آنا جانا ہے، یا رین میں، مونسون میں ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں، لوگ گرتے ہیں، یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو عوام ڈیزرو کرتی ہے، کیونکہ ہم آپ کو ٹیکس پے کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کو عوام ٹیکس پے کرتی ہے تو عوام کچھ ریٹرن ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ میں ادھر ادھر کی تو نہیں کرتا، لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہمارا ایک بیسک رائٹ ہے کہ آپ یہاں پہ روڈز، سیوریج، یہ بیسک چیزیں تو ایٹ لیسٹ پرووائڈ کریں نا۔ بالکل، آمدورفت جو ہے وہ شدید متاثر ہے۔ تباہ حال گلیوں میں سے گزرنا جو ہے وہ علاقہ مکینوں کا محال ہو چکا ہے۔ گندگی کی یہاں پر جو ہے وہ صورتحال کافی بری ہے۔ صفائی ستھرائی مناسب نہ ہونے کے باعث علاقہ جو ہے وہ تعفن زدہ بن چکا ہے۔ گھروں کے باہر نہ صرف کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہیں بلکہ سیویج پانی بھی جمع ہے، گہرے کھڈے ہیں۔ تو اب مکین یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ٹیکسوں کی ادائیگی کے باوجود جو انتظامیہ ہے وہ انہیں بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہے۔ مطالبہ کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے رومیل، بہت شکریہ آپ کا۔ فتح گڑھ مہر فیاض کالونی میں غلاظت کے ڈھیر، علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے۔ واسطہ انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی، مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ فتح گڑھ مہر فیاض کالونی میں غلاظت کے ڈھیر لگنے سے علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے۔ علاقہ مکینوں نے واسطہ انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ مکین کہتے ہیں کہ نکاسی آب کا نظام نہ ہونے کے باعث علاقے کی ابتر صورتحال ہو گئی۔ سیوریج کا پانی کیچڑ کی شکل اختیار کر گیا، پیدل چلنا دشوار ہو گیا، بدبو، تعفن، مکھیوں اور مچھروں کی افزائش سے جینا محال ہو گیا۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مسئلے کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ 13-14 سال سے رہائش اختیار کی ہے یہاں پر، یہاں مجھے صفائی کا نظام نظر آیا نہیں ہے، بلکہ کئی دفعہ ان کو اپروچ کیا ہے، واسا والوں کو بھی کیا ہے، ایون کہ LCMW جو ہے آپ کی، ان کو بھی اپروچ کیا ہے کہ صفائی کا نظام ابھی تھوڑا سا
200 कदम पे आगे पीछे चले जाएं तो वो आपको कैनाल बैंक ये वगैरह सब मिलेगा, वहाँ पे सफाई का निज़ाम बेहतर हो रहा है। लेकिन क्या यहीं के मकीन इस गंदगी के अंदर बदल रहने के लिए आदी बन चुके हैं। शहर में कायम मॉडल बाजार शहरियों को खातिरख्वाह रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम है। बाजार मैनेजमेंट कंपनी बाजारों के इंतजामी अमूर की बेहतरी में गैर संजीदा, फल और सब्जियां गैर मायारी, नाप तोल में कमी, शहरी नाकिस इंतजामात पर फट पड़े, आला हुकाम से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इंतजामी अफसरान दफातर तक महदूद, इंतजामी अमूर बद से बदतर होने लगे। गैर संजीदगी का ये आलम के गुज़िश्ता 6 माह से मॉडल बाजार मैनेजमेंट कमेटी का मुस्तकिल CEO तैनात न किया जा सका। मुस्तकिल CEO की अदम तैनाती और बाजारों के दौरे न होने से बाजारों में फल सब्जी का मयार गिरने लगा। वहदत कॉलोनी मॉडल बाजार में गैर मयारी टमाटर की फरोख्त जारी, कीमत कदरे कम मगर नाकस मयार की सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं। शहरी कहते हैं मयार इंतहाई नाकस, नाप तौल में भी कमी की जा रही है। इंतजामिया शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम बाजारों को हफ्ते में 7 रोज फाल रखने में भी नाकाम हो गई। आलू की सारे खराब हैं, प्याज की जला सड़ा है और जहाँ टीमन किलो है उधर टीमन 800 या 900 ग्राम दिया जा रहा है। और टमाटर की जले सले हैं और 200 रुपये किलो टमाटर हैं। किसी ताम पे टमाटर नहीं है, सारे जले सले। चीज़ें आप चेक करके सारी नाकस होती हैं, कोई चेक करने वाला नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब 93 पे उन्होंने आलू का कर दिया है, 84 रुपये से। प्याज का रेट था 123 रुपये, उन्होंने 143 रुपये कर दिया, 20 रुपये उस पर रेट बढ़ा दी है। वो देखिए दुकानदार की जेब में लिस्ट बड़ी, वो कहता है जी हमें उन्होंने रेट बढ़ा के दे दी है। बदतमीजियाँ करते हैं कस्टमर से, और कस्टमर की वजह से तुम्हारा कारोबार चलता है। और बाद चीज़ें शहर में सस्ती हैं बल्कि इससे, तो इसलिए ये चीज़ें नाप तोल में भी कमी बेशी शिकायत आ रही है बहुत ज़्यादा। तो ये ऐसे करते हैं जैसे पता है एहसान कर रहे हैं हमारे पे यार। मुझे ना वज़न कम लगा, वो मैंने आगे से तुलवाया तो वो 2.5 किलो था प्याज। मैं इनके पास दोबारा गया हूँ, 5 मिनट इन्होंने खड़ा कर दिया था, जी देते हैं जी देते हैं। फिर उन्होंने वही शॉपर फिर दे दिया चेंज करके, वो फिर मैंने जब फिर तुलवाया तो वो प्याज फिर 2.5 किलो था। वो की लागत से मंसूबा शुरू किया गया मगर बाजार मुस्तकिल बुनियादों पर न चलाए जाने से शहरियों को खातर खां रिलीफ फराहम न हो सका। शहर के पेशतर बाजार क्याम से ही जुज़वी तौर पर चलाए जा रहे हैं। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42। लेस्को बागबानपुरा डिवीजन की टीमों का ऑपरेशन, प्लास्टिक फैक्ट्री में लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ ली। लेस्को की बागबानपुरा डिवीजन की टीमों की बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसके दौरान प्लास्टिक फैक्ट्री में बिजली चोरी पकड़ी गई। एक्सीएन बागबानपुरा कामरान नवीद के ज़ेरे निगरानी SDO कोट ख्वाजा सईद नुमान सदीक ने ऑपरेशन किया। एक्सीएन बागबानपुरा डिवीजन के मुताबिक प्लास्टिक फैक्ट्री में सिक्योरिटी स्लिप्स ब्रेक करके चोरी की जा रही थी। बिलिंग मीटर के बॉक्स को खोला गया था। मुलज़िम मोहम्मद शफीक ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट सप्लाई लगाकर भी बिजली चोरी कर रहा था। SDO नुमान सदी के मुताबिक कंपनी को चोरी कीमत में माहाना लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा रहा था। कनेक्शन मुनक़ते करके ट्रांसफार्मर और तारें उतार कर कब्जे में ले ली गई। मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्त भी मुतलका थाने में जमा करवा दी गई है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ 10 दिसंबर से होगा। EPA पंजाब ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कवानीन में तरामीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खिलाफ वर्जी पर 5 से 50,000 रुपये तक जुर्माने आयद किए जाएंगे। 75 माइक्रोवन से कम प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खात्मे के लिए 9 दिसंबर तक आवाम को मोहलत दी गई है। हर ज़िला में प्लास्टिक मैनेजमेंट कमेटियाँ तश्कील दे दी गई। EPA ने मीडिया मुहिम और अवामी आगाही मुहिम को मज़ीद मुअस्सर बनाने की हिदायत भी जारी कर दी। DCO और DPOs के साथ मुहिम के मौसर नफाज के लिए मीटिंग्स की हिदायत भी जारी की गई। प्लास्टिक की तैयारी, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम ज़िले इंतजामिया और पुलिस को क्रैकडाउन के लिए ताउन फ्राहम करने की हिदायत जारी की गई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वफाकी हुकूमत का बड़ा रिलीफ देने का फैसला, जायदादों की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में छूट का तरीकाकार वाज़िया कर दिया गया। जायदादों की खरीदारी पर 236 के और 236C के रिफंड के लिए पाकिस्तान आने की शर्त ख़त्म कर दी। टैक्स छूट के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी आरजी PSID कोड जनरेट करेगा। ID कोड जनरेट करके मुतलका चीफ कमिश्नर IR को ईमेल भेजी जाएगी। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों का स्टेटस चेक करने के बाद बाकायदा मंजूरी दी जाएगी। कमिश्नर की मंजूरी के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी जायदादों की खरीदो फरोख्त पर टैक्स छूट ले सकेगा। टैक्सों के रिफंड के लिए वफाकी टैक्स मोहतसिब ने भी FBR को मुतअद्दिद बार हिदायत जारी की थी। तमाम चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का फैसला एक दिन में करने का हुक्म जारी कर दिया। FBR ने तमाम चीफ कमिश्नर्स को एक दिन में फैसला करने बारे मरासला भी इरसाल कर दिया है।
FPR ने ग्रेड 17 से 20 तक 60 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। मोहम्मद सालिम भट्टी को एडिशनल कमिश्नर कारपोरेट टैक्स ऑफिस मुकर्रर कर दिया है। FPR ने ग्रेड 18 के मोहम्मद इस्माइल दानिश को एडिशनल कमिश्नर DTO लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया। कासिम रजा को बतौर डिप्टी कमिश्नर कारपोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। ग्रेड 18 की सिमाब जफर का बतौर डिप्टी कमिश्नर CTO लाहौर में तबादला कर दिया गया है। मोहसिनुल हसन को सेकंड सेक्रेटरी FPR इस्लामाबाद मुकर्रर कर दिया गया है। नजमुल हसन और मोहम्मद अयास नवाज को भी बतौर डिप्टी कमिश्नर CTO लाहौर खिदमात देने का हुक्म जारी किया गया। अब्दुल बासित और अली ईमान का भी मुख्तलिफ जोन्स में बतौर डिप्टी कमिश्नर तबादला कर दिया गया। FPR ने दीगर अफसरान के तकर्रुर तबादले मुख्तलिफ शहरों के टैक्स दफातर में कर दिए हैं। पाकिस्तान मरकजी मौसम लीग की रुकनियत साजी मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज। PTI के साबिक QC चेयरमैन मियां मकबूल ने मरकजी मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। पाकिस्तान मरकजी मौसम लीग में दीगर सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले मिर्जा मोहम्मद शहबाज और तबस्सुम जट ने भी शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी मरकजी मौसम लीग प्रोफेसर सैफुल्लाह खालिद ने खसूसी शिरकत की। रुकनियत साजी मुहिम में जनरल सेक्रेटरी लाहौर डॉक्टर मुजम्मल इकबाल हाशमी, शेख सदाकत अली, मोहम्मद एजाज अहमद चौधरी, मुआज इश्तियाक और साद शाहीन समेत दीगर शरीक थे। डॉक्टर मुजम्मल इकबाल हाशमी का कहना था कि आज लाहौर की 31 यूनियन काउंसिल्स में सियासी सरगर्मियां जारी हैं। पाकिस्तान मरकजी मौसम लीग का मंशूर बकाया पाकिस्तान से जुड़ा है। हमारी पार्टी मुआशरे में अमन, सलामती और खुशहाली पर यकीन रखती है। सराइकी स्टूडेंट्स कौंसिल के ज़ेर-एहतमाम प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम सराइकी बोलने वाले तुलबा की शिरकत। मुजाहरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया सराइकी तुलबा के साथ तासुबाना रवैया रखती है। सराइकी स्टूडेंट्स कौंसिल के ज़ेर-एहतमाम मुजाहरे में शरीक तुलबा ने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के तासुबाना रवैये के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया सराइकी बोलने वाले तुलबा के साथ तासुबाना रवैया रखती है। सराइकी ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए सरगर्म तालिबे इल्म मदीहा अब्बास को यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने तासुबाना रवैया रखते हुए यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, जिसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि आला हुकाम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के तासुबाना रवैये का नोटिस लेकर मदीहा अब्बास को फौरी बहाल करवाएं। शुक्रिया। हम जो है इधर सराइकी स्टडी सर्कल बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में एक सराइकी डिपार्टमेंट है, उसके जो डायरेक्टर हैं और जो सराइकी स्टडी सर्कल है, एक रिसर्च सेंटर बना हुआ है, उसकी चेयरपर्सन भी हैं। डिपार्टमेंट की ओवरऑल कंडीशन है वो हुकूमत पंजाब और गवर्नर पंजाब के सामने रखने आए हैं कि किसी भी कौम की तहजीब, सकाफ़त और अदब उस कौम का असासा होता है, और उस डिपार्टमेंट में हमारी सकाफ़त, अदब, तमद्दन सब कुछ पड़ा है और हमारी रिसर्चेस मौजूद हैं बुज़ुर्गों की जिनके ऊपर काम नहीं हो रहा। और सराइकी स्टूडेंट्स जो स्टडी सर्कल है उसमें जो है स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बहुत कम है, और हमारा ये हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि जो BZU में और ओवरऑल जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे और इदारे सराइकी के कायम किए जाएँ, और जो हमारा इदारा बना हुआ है जो कि इन अपनी मतलब आखिरी मुस्तहिक मसीही खानदानों के लिए 15 करोड़ क्रिसमस ग्रांट देने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने क्रिसमस ग्रांट को 5 से बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया। क्रिसमस ग्रांट से 10,000 मुस्तहिक मसीही खानदान मुस्तफीद हो सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने ज़िला इंतज़ामिया को मुस्तहिक मसीही खानदानों को क्रिसमस ग्रांट की फ़राहमी के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत जारी कर दी। क्रिसमस ग्रांट की मद में 15,000 फ़ी खानदान में तकसीम होंगे। मुतल्लिका अज़ला की इंतज़ामिया की तस्दीक के बाद डाटा पंजाब काबीना को इरसाल कर दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद ग्रांट तकसीम की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने ईस्टर के मौके पर 10,000 खानदानों में 5,000 फ़ी खानदान तकसीम किए गए। बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के मुनासबत से सिख खानदानों की ग्रांट में भी इजाफा किया गया। 800 सिख खानदानों में फ़ी खानदान 15,000 तकसीम किए गए।